we will discuss optical isomerism. Optical isomerism. Now, optical isomerism, how to define optical isomers? How to define optical isomers? अच्छा बेटा, like organic compounds, in organic compounds for optical isomers you require chiral carbon. Organic optical isomers में chiral carbon must be present. लेकिन in complexes there is no concept of chiral atom. Complexes में we won't be seeing any chiral atom. लेकिन organic compounds में जब आपने optical isomers देखनी है तो you have to identify chiral carbon. Complexes में chirality की कोई condition नहीं है. You can say कि complexes which are non-superimposable mirror images, which are non-superimposable mirror images. So such complexes will be optical isomers. Now, optical isomers is only present in octahedral complexes. Okay, will only be shown by octahedral complexes. Only octahedral complexes will show optical isomers. Only be shown by octahedral complexes. Okay, and octahedral complexes में भी फिर ये rule है कि if bidentate ligands, at least two bidentate ligands, if they are present in octahedral complexes, only then optical isomerism will be present. So if bidentate ligands, and which should be at least two, okay? At least two are present in octahedral complex. Octahedral complex. Only then optical isomerism or optical isomers will be present. Will be present. ये भी मैं एग्जाम्पल्स शो करूंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा बेटा. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल बी प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी कि जब बाइडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट हो. राइट? अच्छा, सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल इज, सपोज we have this complex cobalt with OX, whole taken thrice, raised to the power -3. Acha beta, in last class we discussed this OX is bidentate ligand, okay? OX is di-negative and this is bidentate ligand. हमने last class में पढ़ा था bidentate ligand है OX, and you need to know कि OX क्या है. Yes बेटा, you know what is OX? It is ethane di-O8. Okay, OX is like this. It is ethane di-O8. So this oxygen has lone pair and this oxygen has lone pair. So using these two lone pairs of different oxygen atoms, two dative bonds are made by one OX. So since OX makes two dative bonds, that is why this is bidentate ligand. अच्छा, अब बेटा देखें how to draw the shape of the complex. तो OX, इसका coordination number क्या होगा इस complex का? What will be the coordination number? हाँ, coordination number will be 6. Coordination number is the number of dative bonds which are there around the central metal ion.
जो नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड्स 3 हैं। देयर आर 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स, राइट। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स and its charge is 3 minus. Okay. Acha, I am drawing this bidentate ligand like this. This is one of the bidentate ligand. This is the other bidentate ligand, second one. And this is the third one. Third bidentate ligand is like this. Acha beta, and this one is mirror. The dotted line ko, let's say I'm taking mirror. So how to draw mirror image? ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका मिरर इमेज कैसे होगा? सर राइट वाला लेफ्ट में बनाएंगे और लेफ्ट वाला राइट में। हाँ, पहले तो आप ये ऐसा करो ना कि जो इसकी जनरल, जो इसके नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स है उनको शो कर दो। पहले पहले डेटिव बॉन्ड्स बना लो। तो ये 4, ये 5th और ये 6। अब मिरर इमेज यस बनाना आपने, ठीक है। तो मिरर इमेज में ये वाला जो OX है, ये OX, इट विल कम हेयर, ठीक है। और ये वाला जो मेरा OX है, इट विल कम हेयर, एंड द रिमेनिंग OX विल बी हेयर। अब जो ये दो कॉम्प्लेक्सेस बने हैं ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं बिकॉज दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। एनी क्वेश्चन? तो नॉन एक सुपरपोजिबल क्या मतलब? नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है कि जो राइट वाला कॉम्प्लेक्स है अगर इसे उठा के लेफ्ट वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर रखो तो लिगेंड्स एक दूसरे के को कोइंसाइड नहीं करेंगे। अगर राइट वाला कॉम्प्लेक्स उठा के लेफ्ट वाले के ऊपर रख दो तो लिगेंड्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो जब नहीं करेंगे कोइंसाइड तो ये सिचुएशन है नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, ठीक है सर। ठीक है। लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस तभी बनेंगे जब बाइडेंटेट लिगेंड्स हों। जब बाइडेंटेट लिगेंड्स हों और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तब ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन ये होगा, एग्जामिनर विल आस्क यू टू ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो फिर आपने यू हैव टू ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनर आपको बोले ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स of let's say copper, this is NH2, CH2, CH2, NH2, whole taken thrice 2 plus। इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स आपने ड्रॉ करने हैं। तो अब आप देखें ये जो लिगेंड है दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। ये इथेन डाइमाइन है तो इट्स बाइडेंटेट लिगेंड। अच्छा, अब ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है इसको EN भी शो कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि एग्जामिनर का क्वेश्चन कैसे है। तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन होता है कि ड्रॉ शो द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड। जब एग्जामिनर कह रहा है कि लिगेंड का भी आपने स्ट्रक्चर शो करना है तो फिर यू शुड गो लाइक दिस। पहले तो आप बनाएं, दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्योंकि 6 डेटिव बॉन्ड्स बनेंगे कॉपर के अराउंड। पहले आप डेटिव बॉन्ड्स बना लें। दिस इज वेज, दिस इज वेज, डॉटेड, डॉटेड, ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद आपने हाउ यू हैव टू शो, आपने लिगेंड को शो करना है। तो लिगेंड का एग्जामिनर कह रहा है कंप्लीट स्ट्रक्चर शो करें, तो फिर शो लिगेंड लाइक दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज नाइट्रोजन, किसी भी जगह आप शो कर सकते हो। दिस इज CH2 अब आप देखो द स्ट्रक्चर ऑफ लिगेंड इज बीइंग शोन हियर and this is one nitrogen, this is other nitrogen, this is NH2 तो ये है सेकेंड bidentate ligand जो कि दो डेटे बॉन्ड बना रहा है। एंड द थर्ड वन विल बी हियर, दिस इज नाइट्रोजन लोन पेयर CH2 this is H2 this is H2, ठीक है। एंड प्लेस स्क्वायर ब्रैकेट हेयर, प्लेस स्क्वायर ब्रैकेट हेयर, ओवरऑल चार्ज इज 2+। ये बनाए, फिर मिरर बनाए उसके बाद, दिस इज मिरर, और मिरर के बाद बेटा मिरर इमेज शो करें। मिरर इमेज शो करने के लिए भी पहले आप ये डेटे बॉन्ड्स बना लें। कॉपर 1 2 3 4 5 6 जी बेटा। अब मिरर इमेज कैसे बनेगा, मिरर इमेज कैसे बनेगा, ये वन ऑफ द बाइडेंटेट लिगेंड, उसको इधर प्लेस करें। बेटा क्वेश्चन है तो यू शुड आस्क, this is H2, this is H2, the other bidentate ligand will go there, H2 or N, lone pair, and the last one will be here, this is nitrogen, this is H2, this is H2, this is CH2 bonded to this N, the square bracket here, the other square bracket here, or overall charge is 2+, ठीक है। These are the two optical isomers. Once again आप देखिए bidentate ligand is there. Any question बेटा? तो जब एग्जामिनर बोले ऑप्टिकल आइसोमर शो करें तो यू हैव टू शो इट बाय ड्राइंग द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन को जरा गौर से सुने। नेक्स्ट सिचुएशन इज लाइक दिस। अगर आपको ये कहा जाए कि ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स for, let's say it's nickel En whole twice Cl2 and overall charge is 1+. अच्छा बेटा remember this En is actually the same ligand which we discussed right now in the previous example. This is En, okay? ये आपको पता होना चाहिए कि En is ethane diamine. अगर एग्जामिनर आपको कोई डिटेल ना बताए तो बस आप शॉर्ट करके बाइडेंटेट लिगेंड को लिखें। तो अभी आप देखें मैं शॉर्ट करके आई विल मेंशन। अच्छा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? 6. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ओके। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यू हैव टू शो 6 डेटिव बॉन्ड्स, 1 2, दिस इज 3, 4th, 5th एंड 6th। ये जरा गौर से सुननी है बेटा ये एग्जाम्पल। देखें इफ आई प्लेस En, अब देखें इस यहां मैं बाइडेंटेट लिगेंड को शॉर्ट करके शो कर रहा हूं। वी हैव टू बाइडेंटेट लिगेंड्स, En and En, और the other two ligands are monodentate, Cl and Cl. So two chloroligands are present which are monodentate and two bidentate ligands are present. यहां मैंने bidentate ligand का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं शो किया क्योंकि एग्जामिनर ने कोई कुछ गाइडलाइन नहीं दी थी। तो जब एग्जामिनर लिगेंड के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा तो उसको शॉर्ट करके लिख दें, फिर डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। इधर देखो यहां मैंने बाइडेंटेट, ऊपर वाली जो एग्जांपल है ना इसमें मैंने बाइडेंटेट लिगेंड का पूरा स्ट्रक्चर शो किया है क्योंकि ये गाइडेंस क्वेश्चन में गिवन थी।
एग्जामिनर ने कहा था कि कंप्लीट स्ट्रक्चर शो करें बाइडेंटेड लिगेंड का, लेकिन नीचे एज सच कुछ गाइडलाइन नहीं दी हुई, तो बस सेव योर टाइम शॉर्ट करके बाइडेंटेड लिगेंड को शो करें। एनीवन हु वांट टू आस्क क्वेश्चन? सर EN की जगह कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और नहीं, वेरिएबल? कुछ अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, कोई वेरिएबल दिया है, तो फिर वो यूज करें, अदरवाइज खुद से कोई और वेरिएबल यूज ना करें। या कंप्लीट स्ट्रक्चर शो करें, या वो वेरिएबल जो क्वेश्चन में आपको दिए, कभी कभी क्वेश्चन में वो वेरिएबल दे देते हैं कि लिगेंड को इस वेरिएबल से शो करें, फिर उनके वाला वेरिएबल यूज करें। ठीक है ठीक है सर। जी। एनी अदर क्वेश्चन? ये +1 है, ठीक है। सो आफ्टर दैट यू हैव टू शो मिरर। अब मिरर शो करें बेटा, दिस इज मिरर, ओके। तो बताएं इसका मिरर इमेज क्या? इसका मिरर इमेज बाइडेंटेड लिगेंड, इसका मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर होगा या नहीं? इट्स मिरर इमेज विल बी, मिरर इमेज के लिए भी बेटर कि पहले आप बॉन्ड्स बना लो। तो हियर वी आर, ये बॉन्ड्स बना लें। अब यस, हाउ टू शो मिरर इमेज? ये 2 क्लोरो लिगेंड्स इधर शो होंगे, ठीक है। ये जो EN है ये इधर शो होगा, जो दूसरा EN है वो इधर शो होगा, राइट। तो अब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। राइट वाले लिगेंड को उठा के लेफ्ट वाले लिगेंड के ऊपर रखो, तो सारे लिगेंड्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। राइट वाले स्ट्रक्चर को उठा के लेफ्ट वाले के ऊपर रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनेंगी। अच्छा, अब इसमें डिस्कशन हम करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन बेटा हियर? नहीं सर सर। इसका जी जी। सर इसका सिक्स टर्म्स हो सकता है? सिस ट्रांस बेटा सेल्फ और सेफ स्क्वायर प्लेनर में होंगे। सिस ट्रांस हम स्क्वायर प्लेनर में डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बाकी हाई लेवल पे तो यस डिस्कशन है, आपके सिलेबस में सिस ट्रांस स्क्वायर प्लेनर में डिस्कस होगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा बेटा, जी आप सर। जरा मुझे बताएंगे, कॉम्प्लेक्स था ना, निकल En twice Cl2 and overall charge was +1। अगर मैं इसको यूं लेता, ये 6 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बाइडेंटेड लिगेंड, एक बाइडेंटेड लिगेंड इधर लूं, दूसरा बाइडेंटेड लिगेंड मैं इधर लूं, तीसरा Cl मैं इधर लूं, फोर्थ Cl मैं इधर लूं, क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है? नहीं सर। हाँ, इसका मिरर इमेज भी यही होगा, इसका मिरर इमेज भी यही होगा बेटा। ये बात सबको पिक हो रही है? जी सर। तो इसका जो मिरर इमेज होगा ना, मिरर इमेज नो सुपर इम्पोजेबल होगा। मिरर इमेज विल बी सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल होगा इस वाले का। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमने ड्रॉ किया है, इसका ऑप्टिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स को हम शो करें अगर ऐसे, इसी कॉम्प्लेक्स को आप शो कर दें, दिस इज निकल, डेटे बॉन्ड, अनदर डेटे बॉन्ड, वेज, डॉटेड। अच्छा, इसको बेटा Cl इधर शो करें, दूसरा Cl इधर शो करें, एक En इधर शो करें। अब बेटा, और दूसरा En इधर शो करें। अब बताओ, क्या इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगा या नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। हाँ, अब मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगा, अब पॉसिबल है। ये वेज,
ये डॉटेड, थोड़ा आपको यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है, कि जो आप मिरर इमेज बनाओ वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। तो ये बनेंगे इसके मिरर इमेजेस, देख लो। तो यस, अब जो है ना ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, नाउ दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन, एनीवन विद द क्वेश्चन? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जब आपके पास दो बाइडेंटेड लिगेंड हो ना, तो देन यू नीड टू बी केयरफुल। इफ यू हैव टू बाइडेंटेड लिगेंड्स देन यू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन इफ यू हैव थ्री बाइडेंटेड लिगेंड्स, तो फिर जैसे इस केस में यू हैव थ्री बाइडेंटेड लिगेंड्स, फिर स्ट्रेट अवे आप बनाएं जहां भी बाइडेंटेड लिगेंड्स को आप प्लेस करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स रिजल्ट करेंगे। ठीक है, अगर थ्री बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं तो स्ट्रेट अवे यू विल रिसीव ऑप्टिकल आइसोमर्स। लेकिन अगर दो बाइडेंटेड लिगेंड्स है तो देन ड्रॉ इट केयरफुली। ये दो बाइडेंटेड लिगेंड्स हो तो देन केयरफुली ड्रॉ, इस तरह ड्रॉ करें कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस अपेयर हो, नजर आए। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा बेटा, अब ये सिलेबस बेस्ड एग्जाम्पल है, ओके, तो यू हैव टू मेमोराइज इट, you have to memorize this complex, okay? Platin complex, कौन सा कॉम्प्लेक्स आपको मेमोराइज करना है? प्लेटिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, नाउ दिस प्लेटिन कॉम्प्लेक्स is 2D and its central metal ion is platinum. Two of the ligands are ammonia, two ammonia ligands are there and two chloro ligands are there. And overall charge is 0. There is no overall charge. ठीक है, कॉम्प्लेक्स इज 2D। अच्छा, ये 2D कॉम्प्लेक्स है तो बेटा ये विच टाइप इट इज, वी डिस्कस दिस ऑन फ्राइडे, MA2B2। A2 मतलब दो एक तरह के लिगेंड्स है, दो दूसरी तरह के लिगेंड्स है, एंड इट इज 2D एज वेल। 2D मतलब स्क्वायर प्लेनर। तो इसके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी? सिस ट्रांस। हाँ, सिस ट्रांस विल बी प्रेजेंट इन स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, सर तो 2D और 3D में डिफरेंस क्या है? अगर 4 हो कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल लाइन है और कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, तो यू हैव टू पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो दो अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? ये लेफ्ट वाली है स्क्वायर प्लेनर और जो राइट वाली है दिस इज टेट्राहेड्रल। राइट वाली अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल, सो टेट्राहेड्रल इज 3D, स्क्वायर प्लेनर इज 2D। अब ये हिंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2D शेप बननी है या 3D बननी है। अगर 3D कह रहे हैं फिर टेट्राहेड्रल बनाएं, अगर 2D कह रहे हैं फिर स्क्वायर प्लेनर बनाएं, राइट? ठीक है सर। ओके, तो अब ये ऊपर आपको क्या बताया गया है? सिस प्लेटिन 2D है या 3D है? सॉरी, ऊपर जो प्लेटिन कॉम्प्लेक्स बताया गया ये 2D है या 3D है? ये 2D बताया गया कि 2D है ना, ये आपको याद भी रखना है इसी तरह कि ये 2D कॉम्प्लेक्स है। प्लेटिन कॉम्प्लेक्स जो है वो 2D है। अच्छा, अब जब 2D है तो इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है। सो हाउ टू मेक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और 2D हो शेप, तो फिर कॉम्प्लेक्स विल बी स्क्वायर प्लेनर। तो ड्रॉ स्क्वायर प्लेनर लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, ना बेटा वी हैव टू अमोनिया लिगेंड्स, so if I place ammonia ligands like this Cis. or chloro ligand like this, so this one is
cis ये सिस प्लेटिन होगा, ठीक है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेटिन कॉम्प्लेक्स है, तो वी विल से कि ये सिस प्लेटिन है। अच्छा, सिस क्यों है? दो सेम लेकिन में 90 डिग्री का फर्क है। हाँ, अगर सेम लिगेंड्स 90 डिग्री के गैप से हैं तो देन कॉम्प्लेक्स विल बी सिस, ठीक है। लेकिन अगर वो 180 डिग्री के गैप से हैं, आइडेंटिकल लिगेंड्स, तो सपोज ट्रांस इफ आई प्लेस सम वन अमोनिया हेयर एंड द अदर अमोनिया हेयर, तो अब देखो सेम लिगेंड्स में 180 डिग्री का एंगल है। इफ आई प्लेस वन क्लोरो हेयर द अदर क्लोरो हेयर, तो आइडेंटिकल लिगेंड्स में 180 डिग्री का गैप है। सो नाउ दिस कॉम्प्लेक्स आर, this ट्रांस complex is trans, so this is trans platin, ठीक है। एक है सिस प्लेटिन और एक है ट्रांस प्लेटिन। समझ आ गई बेटा? ये प्लेटिन कॉम्प्लेक्स आपने याद रखना है। अच्छा बेटा, इसमें जो ये सिस प्लेटिन है ना, इसको फर्दर आप मेमोराइज करें कि ये जो सिस प्लेटिन है, इट इज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, दिस सिस प्लेटिन, ओके। सिस प्लेटिन, बेटा हैव यू हर्ड अबाउट कीमोथेरेपी? आपने ये वर्ड सुना है, कीमोथेरेपी? ना, कीमोथेरेपी में जो जो इंजेक्शंस, जो मेडिसिन बॉडी पे अप्लाई की जाती है, वो वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, राइट। सो वन ऑफ द मेडिसिन इज सिस्प्लेटिन, दिस इज वन ऑफ द मेडिसिन। लेकिन जो कीमोथेरेपिक मेडिसिन होती हैं वो प्लेटिनियम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और प्लेटिनियम हैवी मेटल है, इसका बॉडी पे सिवियर साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट क्योंकि हमारी जो बॉडी है इसकी सारी ओरिएंटेशन ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक बॉडी में एक प्लेटिनियम मेटल जब एंटर होती है तो सीरियस साइड इफेक्ट्स आर कॉज्ड। तो सिस्प्लेटिन इज यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ये आपको मेमोराइज रखनी है बात, फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो सिस्प्लेटिन है, इट बाइंड्स विद द डीएनए ऑफ कैंसरस सेल्स, ठीक है। सिस्प्लेटिन बाइंड्स with the DNA or combines with the DNA of cancer cells and prevent abnormal cell division. You know, कैंसर में सेल डिवीजन एबनॉर्मली टेक प्लेस करती है, तो ये सिस्प्लेटिन बाइंड हो जाता है डीएनए से और एबनॉर्मल सेल डिवीजन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एबनॉर्मल सेल डिवीजन, ठीक है। तो यू नीड टू मेमोराइज दिस डेटा, ओके। ये सिलेबस बेस्ड एग्जाम्पल थी और ये डेटा था, यू नीड टू मेमोराइज इट। अगर एग्जामिनर कहे कि प्लेटिन कॉम्प्लेक्स ड्रॉ, सिस प्लेटिन ड्रॉ करें, तो यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस। और आपको याद रखना है कि प्लेटिन कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनियम इज द सेंट्रल मेटल और दो क्लोरो और दो अमोनिया लिगेंड है। बेटा, व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस प्लेटिनियम आयन? 2+. 2+, क्योंकि ओवरऑल चार्ज इज 0 and two chloro ligands are negatively charged. These chloro ligands are negatively charged. So this platinum has to be 2+. तो तब ओवरऑल चार्ज 0 बनेगा, ठीक है। अच्छा, ना बेटा, इफ आई समराइज द होल डिस्कशन, so summary of the discussion is will be like this. Okay, here I am taking shape. Sorry, here I am taking shape like this. This is tetrahedral. This one is square planar.
and this one is octahedral. Okay, तो अब बेटा मुझे बताओ कि, and here I am taking isomerism. Okay, so cis trans here, and then optical isomerism here. जी बेटा, tetrahedral में in your syllabus there will be no cis trans isomerism. In tetrahedral in your syllabus there will be no optical isomerism. ठीक है? अच्छा, स्क्वायर प्लेनर में cis trans is possible, लेकिन कब पॉसिबल होगी स्क्वायर प्लेनर में बेटा? जब सेम लिगेंड 90 डिग्री अपार्ट। हाँ, जब ये सिचुएशन हो Ma2B2, आपके पास 4 लिगेंड्स में से 2 लिगेंड्स एक जैसे हों और रिमेनिंग 2 लिगेंड्स एक जैसे हों, देन स्क्वायर प्लेनर इज पॉसिबल। स्क्वायर प्लेनर में सिस ट्रांस इज पॉसिबल, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। ऑक्टाहेड्रल में सिस ट्रांस इज पॉसिबल, लेकिन कब? जब आपके पास लिगेंड्स लाइक दिस Ma4B2 एंड Ma3B3, ये सिचुएशंस हो। यहां बेटा अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पिछला लेसन रिकॉर्डिंग देख लेना। पिछले लेसन की रिकॉर्डिंग गूगल क्लासरूम पे है, उसमें हमने डिटेल से ये डिस्कस किया है कि Ma4B2 क्या है और Ma3B3 क्या है। और ऑक्टाहेड्रल में बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, पॉसिबल इफ एटलीस्ट 2 bidentate ligands are present. Ligands are present. ठीक है? So this is the summary of the whole discussion. Okay. Yes, but any question? अच्छा No, sir. अच्छा बेटा, नाउ द नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस हैं। वी आर टू डिस्कस लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बिल्ड करूं। देखो, यू नो कॉपर सल्फेट सॉलिड, ठीक है? नाउ दिस कॉपर सल्फेट सॉलिड अगर हम इसे वाटर में ऐड करें बेटा तो व्हाट विल हैपन? इफ दिस इज वाटर एंड वी आर Sir, एडिंग blue दिस, aqueous. हाँ ब्लू सोल्यूशन फॉर्म होगा। तो वाई ब्लू सोल्यूशन फॉर्म होगा? ये कॉपर सल्फेट जब आप इस ऐड करोगे तो कॉपर एंड सल्फेट विल डिसोसिएट, you will get copper ions and sulfate ions. Dissociation will happen and these copper ions will become aqueous. ठीक है? Actually this thing will happen. Copper ions के around water molecules will surround. ठीक है? This is one of the water molecule. Why बेटा? Water molecules क्यों surround करेंगे around the copper ions? सर उसका ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और कॉपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वाटर का जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, तो दैट इज वाई जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंड करेंगे। आपको याद है मैंने एनर्जेटिक्स में आपको पढ़ाया था आयन डायपोल फोर्स, यू रिमेम्बर? जी सर। एनर्जेटिक्स में आई टॉट आयन डायपोल फोर्स, और फिर मैंने हाइड्रेशन का बताया था। हाइड्रेशन इज के व्हेन आयन के अराउंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड। ठीक है, पहले तो ये वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, फिर आयन डायपोल फोर्स डेवलप होती है, बट देन अल्टीमेटली वाटर का जो ऑक्सीजन है विद इट्स लोन पेयर मेक्स डेटे बॉन्ड, तो डेटे बॉन्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब जब ये डेटे बॉन्ड डेवलप हुआ तो बेटा तो ये क्या फॉर्म हो गया? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉपर आयंस का वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स स्टैब्लिश हो गया। तो जो कॉन्सेप्ट आपको अब याद रखना है ना वो ये है
कि जब भी कोई ट्रांजिशन मेटल आयन वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जो एक्वस ट्रांजिशन मेटल आयन होगा वो कॉम्प्लेक्स को शो करेगा। ये जरा जहन में रखें ये बात, ये कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। व्हेन वी से कॉपर आयंस aqueous, it means कि by default you have copper ions with 6 aqua ligands, 6 water ligands and a complex is there। ये दोनों सेम होंगे, मतलब ट्रांजिशन मेटल aqueous ion का मीनिंग ये होगा कि कॉम्प्लेक्स इज देयर। अगर मैं लिखूं कोबाल्ट आयन एंड इधर लिख दूं aqueous, तो बस बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होगा COH2O6 डाई पॉजिटिव। कोई भी ट्रांजिशन मेटल ले लें, मैंगनीज आयन इन एक्वस स्टेट, बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होगा कि मैंगनीज इज देयर इन H2O6 डाई पॉजिटिव एंड सो ऑन। सर समझ आ गई? जी जी। तो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल में होगा ये? हाँ, ट्रांजिशन मेटल्स बाकी मेटल्स में भी हो सकता है। आपके सिलेबस में तो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, लेकिन फिर हम ठीक है। केमिस्ट्री में बाकी मेटल आयंस के लिए भी कंसिडर करते हैं। अब डिपेंड करता है ना, कुछ मेटल आयंस ऐसे होते हैं कि जिनके ऑर्बिटल्स में नहीं होती टेंडेंसी ज्यादा डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म करने की, वो फिर नहीं बनाते कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर ऐसा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे बेटा कोई ट्रांजिशन मेटल आयन, लेट से हम ले लेते हैं क्रोमियम, ठीक है, टेट्राक्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट में है, इसको हम ऐड कर देते हैं वाटर में। ठीक है, ये वाटर है, तो व्हाट हैपेंस, ये क्रोमियम आयंस जो हैं ये एक्वस स्टेट में होंगे। अब एक्वस स्टेट का मतलब यही है कि ये डाई पॉजिटिव हैं और इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। जाहिर है क्रोमियम पे डाई पॉजिटिव है तो वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आके इंटरैक्ट करेगा, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव। तो शुरू में तो ये इंटरेक्शन होगी एंड देन अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगी डेटिव बॉन्डिंग में, तो यूं एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी, तो कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या बिल्ट हुआ कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट पानी में आप डिसॉल्व करो, यू विल एंड एट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि जो कलर होता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से होता है। कलर इज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनता है इसलिए कलर अपेयर होता है। कलर्स पे हम फ्राइडे को इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। बेटा ये जो है ना, ये ब्लू सोल्यूशन है। अब ये ब्लू सोल्यूशन जो है ना कॉम्प्लेक्स की वजह से है, कैसे, ये फ्राइडे की डिस्कशन होगी हमारी। जी बेटा कोई क्वेश्चन था? सर इसलिए ग्रुप 1 2 के कलर नहीं होते? हाँ, कलर्स पे फ्राइडे की डिस्कशन होगी, उसमें आपको पता चलेगा ग्रुप 1 ग्रुप 2 एल्यूमिनियम इनके कलर्स क्यों नहीं होते सर और एक सेकंड ऊपर चलें। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कलर बनाते हैं। ये फ्राइडे की आने वाला जो फ्राइडे है उसको मैं डिस्कस करूंगा। जी बेटा। सर एक Daniel- सेकंड ऊपर जा सकते हैं? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था क्लास, तो मैं चेक कर लूँ अगर कोई। अच्छा अच्छा बेटा, मैं क्लास के फौरन बाद इसको गूगल क्लासरूम पे शीट को शेयर करूंगा। चलो ठीक है सर। ठीक है, तो फिर आप देख लेना। ओके, तो हमारे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे और उससे अगली क्लास फ्राइडे को होगी, तो उसमें आई विल टीच यू दी कलर्स। कलर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पिंक सोल्यूशन है तो हम डिस्कस करेंगे कि कलर क्यों बन रहे हैं। बेटा दैट इज व्हाट वी हैव, और इंशाल्लाह ऑन कमिंग फ्राइडे योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विल बी एंडेड इंशाल्लाह। सो दैट विल बी द एंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जब हम खत्म करते हैं तो दैट इज द एंड ऑफ मिड टर्म सिलेबस। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी।